শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 15 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য चरितामृतम आदि 15.15 ऑनवर्ड्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? ओके। यस, सचिव सुतनाथ श्रीवास प्रभु। আমি তো করিব তোমার দুহার সেবন, আমি তো করিব তোমার দুহার সেবন, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতা মাতার মন। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতা মাতার মন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পিতা মাতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সেবা করবেন এবং তার ফলে তারা संतुष्ट হয়েছিলেন। और महाप्रभु ने अपना वचन रखा। महाप्रभु हो सकता है संन्यास लेके निकल गया जगन्नाथपुरी, लेकिन महाप्रभु ने सची माता और विष्णु प्रिया देवी का ख्याल रखने के लिए भक्त लोग को बोल के दिया था। प्लस महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले भी गए, सेट भी हो गए, वहां से भी भक्त लोग को भेजा था, जैसे दामोदर पंडित को भेजा था। काला कृष्णदास जो दक्षिण भारत में गए थे महाप्रभु के साथ, उनको भी सची माता का देखभाल के लिए भेजा था नवद्वीप में, है ना हिरण्मय गौरांग प्रभु? नहीं, एक तो खबर जो भेजा था कि रिटर्न आए बोल के नित्यानंद प्रभु भेजे थे। उसका बाद तो कटवा में उनका पाटवाड़ी है, हम लोग गया था, जहाँ नुपुर कुंड है उधर। महामंजिल माता जी, प्रभु यहाँ पे विश्व रूप के जाने के बाद में उनको समझा रहे हैं कि मैं आप लोगों का सेवा करूँ। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि महाप्रभु ने अपना वचन रखा। ये जो महाप्रभु बता रहे ना इधर, जे श्री चैतन्य महाप्रभु तार पिता माता के आश्वास दिए जे তিনি তাদের সেবা করবেন, तो उन्होंने सारा जीवन किया। ऐसा नहीं कि संन्यास ले लिया तो उन लोग को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। He made all arrangement. He made all arrangement. This is what I wanted to say. प्रभु जी कौन सा श्लोक चल रहा है? 15.15 आदि। একদিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া, একদিন নৈবেদ্য তাম্বিল খাইয়া, ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানকে নিবেদিত সুপারি খেয়েছিলেন এবং তা মাদক দ্রব্যের মতো ক্রিয়া করার ফলে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। সুপারিও এক প্রকার মাদক দ্রব্য, তাই তা সেবন করা নিষিদ্ধ। দেখি महाप्रभु इसीलिए ये लीला दर्शाया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সুপারি খেয়ে মূর্ছিত হওয়ার লীলা করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে সুপারি খাওয়া উচিত না। এমনকি তা যদি বিষ্ণু প্রসাদও হয়, ঠিক যেমন একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করা উচিত না, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়ার লীলা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং যা ইচ্ছা তাই খেতেও পারেন, কিন্তু আমাদের তার লীলা अनुकरण करा उचित ना, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ सुपारी के बारे में बताया, पान के बारे में कुछ बताया नहीं है हालांकि। तो पान में तो सुपारी तो होता ही है, इसीलिए मंदिर का जो पान अरे में नहीं, होता है, माते सुनिए प्रभु क्या बोले, खाली सुपारी का बार बोल। सुपारी बहुत तो ठीक है, तो इसीलिए ना पान साथ सुपारी खाना मना है। तो मंदिर में जो चढ़ता है तो लोग तो देखते हैं फूल माला में डाल देते हैं। अगला श्लोक। आस्ते बैसते पिता माता मुखे दिलो पानी, আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানি, সুস্থ হইয়া কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী। সুস্থ হইয়া কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो मूर्छित हो गया क्योंकि सुपारी खा के मूर्छित हो गया। हाँ, सुपारी में इंटॉक्सिकेशन रहता है, तो मूर्छित हो गया। তার পিতা মাতা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তার মুখে জল দিলেন এবং মহাপ্রভু সুস্থ হয়ে তাদেরকে এক অপূর্ব কাহিনী বললেন। এথা হইতে বিশ্বরূপ মোরে লইয়া গেলা।
পিতা হইতে বিশ্বরূপ মোরে লইয়া গেলা, সন্ন্যাস করো তুমি আমারে কহিলা, সন্ন্যাস কর তুমি আমারে কহিলা। আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা, আমি কহি আমারও অনাথ পিতা মাতা, আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা, আমি বালক সন্ন্যাসেরও কি বা জানি কথা। গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন, গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন, ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ। তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে, তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে, মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে। মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে। এই মত নানা লীলা করে গৌর হরি, এই মত নানা লীলা করে গৌর হরি, কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি। কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি। মহাপ্রভু বললেন বিশ্বরূপ আমাকে এখান থেকে নিয়ে গেল, এবং আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুরোধ করলো। तो शायद ये सब स्वप्न में देखा होगा। वो जो मूर्छित हो गया था ना, उस समय ये सब महाप्रभु देखा। ये विश्वरूप आया, उनका बड़ा भाई आया और यहाँ से उनको लेके गया, और वो खुद सन्यास हो गया। इनको भी बोला सन्यास लो। আমি বিশ্বরূপকে বললাম, যে नाम पुकार के बोल रहे हैं, बड़े भैया ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, नाम पुकार के बोल रहे हैं। আমি বিশ্বরূপকে বললাম আমার পিতা মাতা অনাথ, আর আমিও হচ্ছি নিতান্ত বালক, সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে আমি কি জানি। আমার পিতা माता अनाथ, আমার পিতা माता अनाथ माने जिनका माता पिता नहीं है, और ये बोल रहे कि আমার পিতা माता अनाथ। প্রভুজি এখানে বলছে যে ছেলে চলে গেছে না সেজন্য না, অনাথ তো যার মা বাবা। হ্যান্ড গেজ করে বলুন সব মাতাজি, হ্যান্ড গেজ করে। সন্তান হারানোর জন্য বলছে। यस पंकज प्रभु, वो मैं यही पूछ रहा था, ये अनाथ कैसे बोल रहे हैं? वही हम भी सोच रहे हैं। हिरण्मय गौरांग प्रभु, माने गार्डियन नहीं, गार्डियन माने उनको देखभाल करने का कोई नहीं है, बड़ा भाई चला गया ना इसीलिए बोल रहे हैं। यूजुअली अनाथ हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, माने प्रीवियस जनरेशन के लिए। गार्जियन नहीं है, ठीक ही बोला आपने, गार्जियन नहीं, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली है। देखिए जगन्नाथ मिश्र बांग्लादेश से यहाँ आ गया, सची माता का है पिता नीलांबर वो चक्रवर्ती। यहाँ पे ये सिद्धांत भी तो फिर ये है कि जब वन शुड मस्ट टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, एकदम, तो उसको भी प्रायोरिटी देने का ये तो होगा यहाँ पे। एब्सोल्युटली। और महाप्रभु लॉजिक भी दिखा रहा है, हमारे पिता माता अनाथ माने देखने उन लोग को देखभाल करने वाला कोई है नहीं, प्लस बड़े भाई भी चला गया, तो मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन छोटा लड़का निमाई। और आमियो होची नितांत बालक में भी, मेरा भी उम्र कम है, बड़ा भैया भी नहीं है, सन्यास आश्रम संबंध आमी की जाने। ऐसे उन्होंने किसको बोला? अपने बड़े भाई विश्वरूप को बोला। ये सत्य हुआ माता जी? ये विश्वरूप जैसे आपने बोला ना कि सपने में बोल रहे हैं, तो वैसे भी तो सचमुच का विश्वरूप तो उन्हें बोले ही थे कि सन्यास के बारे में। तो उस टाइम भी तो मना किए थे, जैसे आप अभी जैसे सपने में जैसे बोल रहे हैं, तो इसका पहले भी तो विश्वरूप उन्हें सन्यास के बारे में बोले थे, तो मना किए थे। और जब माँ बाप जब उम्र हो जाता है तो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो बच्चे ही सहारा बन जाते हैं गार्डियन के लिए। करेक्ट, यस। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी इंग्लिश में क्लियरली लिखा, आई हैव माय हेल्पलेस फादर एंड मदर। हेल्पलेस, वही हेल्पलेस इज अ बेटर वर्ड। अनाथ माने हमारे अनाथ से ज्यादा हेल्पलेस, यस। And I am also a child, what I know about the sannyas, but helpless father and mother. So it's my duty to take care of them. उस हिसाब से इसमें अनाथ वर्ड। गृहस्थ होइया करिबो पिता मातार सेवन। देखिए एक डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंडर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब कविराज गोस्वामी महाप्रभु को कोट कर रहा है। আমি গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করে পিতামাতার সেবন করব এবং তার ফলে লক্ষ্মী নারায়ণ আমার প্রতি তুষ্ট হবেন। তখন বিশ্বরূপ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল এবং আমাকে বলতে বলল
মাকে আমার কোটি কোটি নমস্कार জানিও। ये ठीक नहीं है। ये आप लोग का भी डबल इन्वर्टेड का अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स है क्या? श्लोक नंबर 20 का ट्रांसलेशन। जी प्रभु है। इसका मतलब एक्चुअली ही इज कन्वर्सिंग विद विश्वरूप, तो इसलिए वो सिंगल है, और डबल यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये लिख रहे हैं। नहीं, तो 21 नंबर भी तो फिर कविराज गोस्वामी महाप्रभु को कोट कर रहे हैं, तो उसमें एक ही इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों? हाँ, एक ही, इसमें दो है, राइट, सिंगल एंड डबल। বিশ্বরূপ আমাকে এখানে শ্লোকার্থে কিন্তু ডবল ইনভার্ট করা হয়েছে, ওটাই তো প্রশ্ন করছি। 21 নম্বরে আর 22 দেখুন এটা ক্লোজ হচ্ছে, তখন বিশ্বরূপ আমাকে 21 21 प्रभु क्लोज हो रहा है 2 इन्वर्टेड कॉमा से। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे आप मेरे चीज दोहरा रहे। তখন বিশ্বরূপ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে এবং আমাকে বলতে বললো মাকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানিও। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু उनका कन्वर्सेशन विद विश्वरूप इज ओवर ना, उनका कन्वर्सेशन विद विश्वरूप इज ओवर बोल करके वो डबल, वो पूरा क्लोज कर दिए हैं। सिंगल भी है और डबल भी है, 21 में तीनों है। এভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নানা রকম লীলাবিলাস করছিলেন, কিন্তু তিনি যে কেন তা করছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। কবিরাজ গোস্বামী বললেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ভক্তরা যখন এই জগতে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আসেন, তখন তারা মাঝে মাঝে এমন আচরণ করেন যে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়। বৈষ্ণব তার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেন, কিন্তু মূর্খ লোকেরা সেই অতি উন্নত বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য না জেনে তাদের সমালোচনা করে। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈষ্ণব যা করেন তা বুঝতে না পেরে তাদের সমালোচনা করা একটি মস্ত বড় অপরাধ, এবং তার ফলে সমালোচনাকারীর সর্বনাশ হয়। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि अभी बुझते पारছি না why he did like this, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो एक्चुअली उनको सब मालूम है। ये तो थोड़ा समझ ही पा रहे हैं आप कि महाप्रभु एक्चुअली क्यों ऐसे बोल रहे हैं माता पिता को, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे हुआ है, क्यों उन लोग को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। बड़ा पुत्र चले गए संन्यास लेकर, तो बहुत हर्ट हुआ होगा ना, असहाय फील किया होगा ना, तो इसीलिए बोला कि डोंट वरी आई एम देयर, मैं तो हूं। ऐसा ना हो कि असहाय फील करके कुछ मन ही मन में अपना बड़ा पुत्र के प्रति नेगेटिविटी रहे, इसीलिए महाप्रभु। और बड़ा पुत्र भी तो एक्चुअली देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु की प्रकाश है, और छोटा पुत्र महाप्रभु है, और नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु का ही प्रकाश है। तो अपने आप को भी, इसीलिए कविराज गोस्वामी बता रहे कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, बोल रहे हैं मैंने हम लोग को थोड़ा सोचने के लिए मौका दिया कि व्हाई ही मस्ट हैव डन दिस लीला, ये पास्ट टाइम क्यों बोला, ऐसे उनको लग सकता है। यस, अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं कि हम सेवा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, मेरे माता पिता इस उम्र में असहाय हैं, लेकिन फिर वही काम वो करते भी हैं, तो इसका मतलब क्या? मैं तो अभी समझा है प्रभु, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। मैं तो अभी थोड़ा आगे बताया ना, ये भी संन्यास लेते हैं, निमाई भी संन्यास लेता है, लेकिन फॉर हायर कॉज लोअर कॉज कैन बी सैक्रिफाइस्ड। 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट, वो महाप्रभु सब व्यवस्था करते हैं कि ऐसा नहीं कि विश्व उनका माँ विधवा माँ और उनका सेकंड पत्नी विष्णुप्रिया देवी का कोई तकलीफ होगा, एवरीथिंग अरेंजमेंट करते हैं, वहां से भी खबर लेते थे कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है कि ये जो घटना विश्वरूप के बारे में माता पिता को बताया ना, शायद ये हुआ भी नहीं था, लेकिन उस समय माता पिता को शांत करने के लिए, क्योंकि बड़ा लड़का चला गया, उन लोग को सदमा पहुंचा, इसीलिए बोला होगा। उसीलिए कविराज गोस्वामी बता रहे ये श्लोक যে এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নানা রকম লীলা কিন্তু তিনি যে কেন তা করেছিলেন, ওয়াই এসে কিয়া, তা আমি বুঝতে পারিনি।
हम लोग के ऊपर छोड़ दिया। यू गेस क्यों ऐसे किया होगा। ओके, अगला। नहीं, हम लोगों के बस की बात नहीं है ये सब लीला समझना। कुड भी ऐसे हो सकता है। কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক, কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক, মাতা পুত্র দুহার বাড়িল রিধি শোক। माता पुत्र दुहार बारिल हृदय शोक। तो ये तो और मैटर वर्स हो गया। एक तो बड़ा पुत्र चला गया सन्यास लेके, अभी हस्बैंड भी मर गया। আর কিছুদিন পর জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করলেন এবং মাতা ও পুত্রের অন্তরে অত্যন্ত শোকের উদয় হলো। यस पंकज प्रभु। है कि हाँ जी, महाप्रभु जी जब सन्यास लिए थे तब तो माता को बता के गए थे ना, परमिशन लिए थे शायद। परमिशन लेके गया था। लेकिन ये जब विश्वरूप जब गए तब वो परमिशन नहीं लिए। तो वो प्रॉपर वे मतलब शोक बताने के लिए हो सकता है ना कि ये यदि मिलन में गौरांगी प्रभु विश्वरूप जब गए थे परमिशन लिया था ना। ऐसा तो नहीं आया। होता है सबको, लेकिन वो मैंने ऐसे उनको माताजी को और सबको तो पता था कि जा रहे हैं, लेकिन परमिशन कुछ उल्लेख नहीं कि परमिशन बिना नॉर्मल मैंने कुछ पता नहीं। तो वो परमिशन के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, हम नहीं लिए थे परमिशन। लिखा नहीं है इसका मतलब नहीं लिया था। ये तो गलत है ना, आपने जजमेंट पास कर दिया। लिखा नहीं है बोल सकते हैं। यस इंद्राणी माता जी। বুঝি ওনার বিয়ে ঠিক করলো তখনই তো চলে গেল বিয়ে চলে বাস। কিন্তু এটা বলতে পারেন না যে পারমিশনের প্রশ্নটা উঠছে যে পারমিশন বড় ছেলে নিয়েছিল কিনা, সেটার ব্যাপারে কোথাও আমরা আসিনি। বিয়ে ঠিকও হলো না, শুধু কথাবার্তা চলছিল, তখনই উনি চলে গেলেন। চলে গেল হতে পারে, মা বাপকে বলেই চলে গেছে, माता पिता के बोली चले गए। ये भी तो अपना इंगित दे दिया कि स्वप्ना देश हुआ है कि हम भी गूगल प्लीज, बहुत क्योस हो जाएगा, नहीं तो सब ऐसे बोलने लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा क्लास का। यस महामंत्री माता जी। प्रभु 13 नंबर श्लोका का जो अर्थ है उसमें बोल रहे ना विश्व रूप के चले जाने का समाचार सुनना। तो समाचार सुनने का मतलब दूसरों से ही सुनना, वो कुछ ही नहीं। अच्छा पॉइंट है। তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়ে সচী মাতা ও জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। গৃহত্যাগের কথা শুনে बोला कि हम आई एम गोइंग। ओके एनीवेज यस अशोक प्रभु। बोले प्रभु कि महाप्रभु भी तो इंगित दे दिया है, स्वप्ना देश में हमें स्वप्न मिला है कि विश्वरूप हमको बोले हैं कि तुम भी चले आओ संन्यास ले लो। वो भी है वो भी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला उसके बाद, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। भरोसा दे रहे हैं माता पिता को, टूटिए मत हम हैं, लेकिन काम तो वही है। अच्छा अगला श्लोक। बंधु बांधव आशी दुहा प्रभु दिलो, बंधु बांधव आशी दुहा प्रभु दिलो, पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिल, पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिल। বন্ধু বান্ধবেরা এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার মাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি বৈদিক বিধি অনুসারে পিতৃক্রিয়া পালন করলেন। दशरथ महाराज के समय नहीं कर पाए थे ना। কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন, কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন, গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহ ধর্ম, गृहस्थ হইলাম এবে চাহি গৃহ ধর্ম। ऐसे लिखा है क्या? श्लोक एकदम मैचिंग नहीं हो रहा है, राइमिंग नहीं हो रहा है। इंग्लिश में क्या दिया है करुणा राधे माता जी श्लोक? मीनिंग इज आफ्टर सम डेज। श्लोक पूछ रहा हूँ, श्लोक है কত দিনে প্রভু চিন্তা করিল চিত্তে করিল চিন্তন, গৃহস্থ হইলাম এবে চাই গৃহ ধর্ম, यही लिखा हुआ। राइमिंग नहीं हो रहा है। यस बंधु प्रभु। আর রাইমিংটা হয় চিন্তন ধর্ম, চিন্তন আর ধর্ম রাইমিং হচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর নালে চিন্তন ধর্ম, ধর্মন ধর্ম 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 হিন্দি ওয়ার্ড যেরকম উচ্চারণ করে ধর্ম, চিন্তন ধর্ম। यस बंकिम प्रभु।
हरे कृष्णा বলুন তো। हरे राम हरे कृष्णा हरि बोल राधे राधे दंडवत प्रणाम প্রভুজি বিশ্বরূপ তো নিত্যানন্দের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছিল আর যেদিন বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছিল অ্যাকর্ডিং হয়ে গেছিল পরবর্তীকালে সেই নিত্যানন্দকে যেদিন প্রথম মহাপ্রভু বাড়িতে নিয়ে এলেন এক সেকেন্ড, তখন এক নম্বর নিত্যানন্দ বলবেন না, নিত্যানন্দ প্রভু বলে সম্বোধন করুন। হ্যাঁ নিত্যানন্দ বাবুকে যেদিন প্রথম দিন মহাপ্রভু বাড়িতে নিয়ে এলেন তখনও নিত্যানন্দ বললো যে সৃষ্টি মাতাকে বললো আমি তোমার দ্বিতীয় সন্তান, আমি তোমাকে দেখাশোনা করব। তার মানে কি হলো? হরে কৃষ্ণ প্রভু। আচ্ছা, এক তো হচ্ছে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছিল, এটা তো আই ডোন্ট নো ওয়্যার ইট হ্যাজ কাম অ্যাক্রস। হ্যাঁ, অজয় নদীতে চান করতে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছিল, আর বিশ্বরূপ উঠেনি, নিত্যানন্দ উঠে এলো, বিশ্বরূপ ছিলেন না। এবং নট অনলি দ্য বিশ্বরূপ তো নিত্যানন্দের বাড়িতে ওনাকে আনতে গেছিলেন। করাতে হবে বাপরে বাপ, এই জন্য এনাকে বলতে দেয় খুব 10টা জিনিস ভালো বলবেন, একটা জিনিস এমন বলে দেবেন ডেঞ্জারাস, লোকের মাথায় ঢুকে যাবে। এই কোথায় লেখা আছে অজয় নদীর এখানে বিশ্বরূপ তো চলে গেছে, লেখা আছে আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত পড়ে পাই যে পন্ডরপুরে ওনার অপ্রকট লীলার ব্যাপারে পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুকে বলছেন। এই জিনিসটা যেটা বললেন কোথায় লেখা আছে? প্রথমে নিয়ে আসুন কালকে, ঠিক আছে? অজয় নদী ওকে, কিন্তু আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি, হি উইল নট ব্রিং, আই এম টেলিং ইউ এভরিবডি। ওকে বলেছেন, কিন্তু একবারও কিন্তু রেফারেন্স প্রত্যেকটা প্রমাণ দিয়েছি প্রভু, যেটা বলবো না প্রত্যেকটা প্রমাণ দিয়েছি আমি। হরে কৃষ্ণ বাবু। তবে এগুলো বলার জন্য বলছেন উকিল বাবু, কোথায় নিয়ে এসেছেন প্রমাণ দিতে? কখনো তো আজ অব্দি দেখলাম না ক্লাসের বইটা নিয়ে এসেছেন যে এই দেখুন এখানে লেখা আছে। ক্লাসে আমি পাঠিয়েছি, নিত্যানন্দ বাবুরে পাঠিয়েছি, আমার সব বই পাঠিয়েছি, আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস পাঠিয়েছি, আমি ফোন করিয়েছি, এমন টেলিফোন করে বলিয়েছি। হরে কৃষ্ণ বাবু। কালকে আপনি একটু বলে দেবেন, ঠিক আছে? এই অজয় নদীর মধ্যে দুজনে বিলীন হয়ে গেল, কোথায় কোন গ্রন্থে লেখা আছে শোনাবেন। ओके, कैसे हो सकता है? तो एक तो पंढरपुर चले गए सब आया कर, कहाँ दमदम? आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीवेज। अच्छा, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, तभी ऐसा नहीं कि पितृ कर्म करने का क्या दरकार है, भगवान हूं मैं नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विधि पूर्वक अनुसार, माने समाज का जो विधि था उस समय, पिंडदान करा एक्सेट्रा, महाप्रभु ने किया, गया जाकर किया पिंडदान। हम लोग का समाज में यही, हमको जितना दूर मालूम है, अभी उस समय क्या था मालूम नहीं है कि माता पिता का देहांत हो गया, कोई भी एक भी देहांत हो गया तो 1 साल बाद, पहले तो उस समय तो करना ही पड़ता है श्राद्ध अनुष्ठान, 1 साल बाद गया में जाकर पिंडदान करना पड़ता है, ऐसे कुछ है। आई डोंट नो आप लोग में क्या है, हिंदी भाषी में बोल सकते कुछ? हम लोग में यही है प्रभु, आफ्टर 1 ईयर ना, यही होता है जैसे बताया आपने। हाँ, बसंती पूर्णिमा माता जी। हाँ, हम लोग का 1 साल बाद बरखी बोला जाता है प्रभु जी उसको। अभी महाप्रभु कितना दिन बाद गया था, शायद वो उल्लेख तो है नहीं, वो प्रभु निश्चित नहीं रहता है, साल भर के बाद तो बरसी होती है, लेकिन उसके बाद जो गया वाला पिंडदान है वो थोड़ा, मान लीजिए कि बहुत सारे रेगुलेटिव है सामाजिक, जिसके सास ससुर है, पिता माता है, वो नहीं जाएगा, इस तरह से थोड़ा डेल्ट हो जाता है। बंगाल में हम एक आश्चर्यचकित चीज देखा है कि कुछ बच्चे लोग वेट करता है दूसरे का देहांत के लिए, ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। एक जन चला गया तो फिर 1 साल बाद नहीं जाता है, बोलते एक बार में कर लेंगे, ये क्या नॉनसेंस। हाँ, एक बार में कर लेंगे। अरे एक बार माता चला गया, सोचिए पिता के लिए वेट कर रहा है, पिता आगे जाएगा या तुम ही चले जाओगे, कोई किसका कौन जाएगा, कोई गारंटी है क्या? यस पंकज प्रभु, इसका मतलब ये तो रियलाइजेशन है कि सब जाने वाला है, लेकिन ये नहीं है कि हम भी जाएंगे। हाँ वो यानी आनी भूतानी। ओके, কতদিন প্রভু খরচা বাঁচানোর জন্য অনেক। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, একবারে করে নেবো, আবার ট্রেনের টিকিট 2 বার লাগবে, মানে কিতনা কনফিডেন্ট। ওই তো একবার কয়জনে বাঁচবে কি না সেটা কনফিডেন্ট। কতদিন প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন, কতদিন দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন, গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহ। আচ্ছা, ये हो गया ना। আচ্ছা, আর কিছুদিন পর মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি এবং যেহেতু আমি গৃহস্থ হয়েছি, তাই আমরা
তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে গৃহধর্ম পালন করা। গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন, গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন, এত চিন্তি বিবাহ করিতে হইল মন। এত চিন্তি বিবাহ করিতে হইল মন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিবেচনা করলেন গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম যথাযথভাবে পালন হয় না, তাই মহাপ্রভু বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। ন গৃহং গৃহ মিত্তাহু, ন গৃহং গৃহমিত্তাহু, গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, তয়া হি সহিত সর্বান, তয়া হি সহিত সর্বান, পুরুষার্থান সমশ্নুতে। পুরুষার্থান সমশ্নুতে। গৃহকে গৃহ বলা হয় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। কেউ যখন গৃহিণী সহ গৃহে বাস করে তখন মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে, দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে, বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গা পথে, বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গা পথে। পূর্ব সিদ্ধ ভাব দুহার উদয় করিল, পূর্ব সিদ্ধ ভাব দুহার উদয় করিল, দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল। দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল। একদিন মহাপ্রভু যখন পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছিলেন তখন দৈবক্রমে তিনি গঙ্গার পথে बल्लभाचार्य कन्या के देखते पहले। अच्छा, यह तो ये लिखा है, आगे ये भी आया था ना कि एक बार वो गंगा पूजा के लिए शिव पूजा के लिए मिले थे, ये भी लिखा था तो ना? ये तो दूसरी बार देख रहे हैं, अभी तो एक बार तो देख चुके हैं। नैवेद्य खासम एक्चुअली इसका पूरा डिटेल दिया हुआ था वो चैतन्य, नहीं वो उसमें भक्ति रत्नाकर में पूरा इन लोग दोनों कैसे एक देखा, सब कुछ पूरा डिटेल दिया था उसमें। एनीवेज, और যখন মহাপ্রভু লক্ষ্মী দেবীর সাক্ষাৎ হলো তখন তাদের पूर्वसिद्ध भावेर उदय হলো। पूर्वसिद्ध माने वो जो जहां हुआ था गंगा तट पे एक बार हुआ था ना, वो भाव फिर से जागृत हुआ। तो सही बोला आपने, ये सेकंड मिलन है। এবং দৈবযোগে বনমালী ঘটক তখন সচী মাতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ऐसी आया होगा बनमाली घटक, कोइंसिडेंस हो गया। दैवयोगे माने कोइंसिडेंस, एक्चुअली दैवयोगे माने होती विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत इच्छा से। ऐसा नहीं कि देवता की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ऐसे हुआ। ये बनमाली घटक भी आया, जल्दी बनमाली घटक को भेजा है भाई, जल्दी मेरे को शादी करवाओ इनसे। ये साक्षात मेरा इटर्नल कॉन्सर्ट है ना, नित्य कॉन्सर्ट को क्या बोलता है हिंदी में? नित्य संगनी, नित्य संगिनी है ना। বনমালী ঘটক ছিলেন নবদ্বীপবাসী বিপ্র। তিনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালি করেন না। হরে কৃষ্ণ। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্বলীলায় যিনি ছিলেন বিশ্বামিত্র, যিনি রামচন্দ্রের বিবাহ ঘটকালি করেছিলেন, है ना? दशरथ महाराज को जाके बोला था, नहीं सॉरी, इनका विश्वामित्र क्या नाम है, सीता मैया का माता पिता का नाम जनक महाराज बोला था कि ऐसे रामचंद्र जी ऐसे है, तो उन लोग को भी इनवाइट किया, फिर जाकर इनवाइट किया था ना। যিনি রামচন্দ্র বিবাহ ঘটকালি করেছিলেন এবং পরবর্তী লীলায় রুক্মিণী দেবী যে ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনিই হচ্ছে চৈতন্য লীলার বনমালী ঘটক। হরি बोल, हरि बोल। वाह, कितना देखिए, कितना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন, শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন, লক্ষ্মীকে বিবাহ কইল শচীর নন্দন, লক্ষ্মীকে বিবাহ কইল শচীর নন্দন, বিস্তারিয়া বর্ণিল তাহা বৃন্দাবন দাস, বিস্তারিয়া বর্ণিল তাহা বৃন্দাবন দাস। এই তো পৌগণ্ড লীলার সূত্র প্রকাশ, এই তো পৌগণ্ড লীলার সূত্র প্রকাশ। हरे कृष्णा बाबू जी, ये उनका विवाह हुआ था, उसमें वो कोई खर्चा किया था, क्या नाम है उनका, ये तो लीला उसमें आया चैतन्य भागवत में। हाँ, उसमें तो खान, लेकिन बाद में बुद्धिमंतो खान विष्णु, हाँ विष्णु प्रिया माता जी ये हम लोग का इसमें ये चैतन्य चैतामृत में भी आया था क्या? ये अभी पहले जब आया था नहीं आया, हमको लगता है वहाँ चैतन्य भागवत में आया।
हाँ उसमें डिटेल दिया हुआ है, और चैतन्य मंगल में भी बहुत कुछ एक्चुअली डिटेल में आया था उसमें, भक्ति चेतन रत्नाकर भागवत में डिटेल्स में है सर। भक्ति रत्नाकर में ये सब डिटेल आया था, ये सब आया था सब महाप्रभु का लीला। नहीं अभी वहाँ चल रहा था ना सैटरडे क्लास में, वो कैसे देते, क्या क्या आयोजन हाँ। करते हैं, सबको 2-2 3-3 बार गिफ्ट देते हैं, वो सब पूरा विवाह का डिटेल आया था उसमें। यस और वो भक्ति रत्नाकार में भी आया था, ऐसा आया था ना, लग रहा सचमुच का शादी है, ऐसा वर्णन था उसमें, लग रहा था सचमुच का शादी दर्शन देख रहे हैं हम लोग। ओके তো সচিদেবীর নির্দেশ অনুসারে বনমালী ঘটক বিবাহের আয়োজন করলেন না, वो उसमें वो भी था, हमको याद है भक्ति रत्नाकर में कि बनमाली घटक बहुत उत्तेजित हो गया कि मैं जैसे भी हो मैं भगवान का संबंध मैं ठीक करूंगा और इससे मेरा ख्याति बढ़ेगा, आजीवन लोग मुझे याद करेगा, ऐसे सब आया था कि मैं भगवान का घटक हूं। 31 नंबर श्लोक विस्तारिया, अच्छा ये हो गया। পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার, পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার, বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার, বৃন্দাবন দাসে ইহা করিয়াছেন বিস্তার। অতএব দিঙ্গাত্র হই ইহা দেখাইল, অতএব দিন মাত্র ইহা দেখাইল, অতএব কি দিন মাত্র, দিন মাত্র চৈতন্য মঙ্গলে সর্বলোক খ্যাত হইল, চৈতন্য মঙ্গলে সর্বলোক খ্যাত হইল। তার পৌগণ্ড বয়সে মহাপ্রভু বহু লীলা বিলাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেইগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। उसीलिए अगर आपको ये बाल्य आदि लीला पढ़ना है महाप्रभु का सन्यास के आगे तो डिटेल में चाहिए तो चैतन्य भागवत पढ़िए, चैतन्य मंगल भी, लेकिन इसमें ज्यादा दिया नहीं है चैतन्य चैतन्य। আমি কেবল সেই সমস্ত লীলার আভাস মাত্র দিলাম, কেননা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে যেটা বর্তমানে শ্রী চৈতন্য ভাগবত সেই লীলাসমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার ফলে সেইগুলি সমস্ত জগতে বিখ্যাত হয়েছে, অলরেডি ইট ইজ फेमस, इसलिए आई एम नॉट दोबारा बोलना ठीक भी नहीं होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आस, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জড় আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ইতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ড লীলা বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ৫৫ পরিচ্ছেদ ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद जी की जय। 1600 परिच्छेद 16th चैप्टर। ফটো হ্যাঁ ফটো কি বললেন বুঝতে পারলাম না। গ্রুপ ফটো, গ্রুপ ফটো। ओ ग्रुप फोटो, थैंक यू, हाँ थैंक यू शिव शंकर प्रभु। ओके सब बोलिए ग्रुप फोटो सब कृपया। हाँ आपका आपका दोस्त वीडियो ऑफ करके रखा है। माधव प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब वीडियो ऑन करके ग्रुप फोटो के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। यस से हरि हरि हरी हरी। अरे कौन लेगा फोटो? हरे कृष्ण, लुक मैं लेता हूँ। प्रभु जी एक सेकंड, रेडी? जब मैं बोलूंगा हरि सब बोलेगा हरि। गौर हरि बोलिए हरि 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 हरी हरी हरी। वही सैटरडे क्लास है, जल्दी वाइंड अप करना। আমাদের আমাদের ড্রামাটা হয়ে যাক। হ্যাঁ ড্রামাটা হয়ে যাক। ইয়েস, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। কবিরাজ গোস্বামী কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়।